2018 में जर्मनी आया फॉर मेरे मास्टर्स के लिए, एंड दैट टाइम मैं यहाँ पे किसी को पहचानता नहीं था, कोई मेरा यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं था, बट आई जस्ट हैड अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड माइन, एंड उसका एक फ्रेंड था, सो ही वाज इन जर्मनी दैट टाइम, सो ही हेल्प मी and with all of this information, so how to apply for these universities and how to shortlist universities. So it was really challenging for me because you have to do everything on your own. So yeah, so I asked him, so he helped me for all these application processes, how to apply, where, because there are different kind of portals, तो आपको उस पे apply करना होता है. And then yeah, so how and I got selected only at one university, and yeah, so I came in 2018 for my masters. ओके, सो ये एप्लीकेशन, सिंस यू आर ए स्टूडेंट, सो एप्लीकेशन प्रोसेस दोबारा से बताओ, कैसे पता चला, फिर उसके बाद कैसे अप्लाई किया, बिल्कुल रॉ, जैसे कोई एक नया बंदा अप्लाई कर रहा हो तो वो कैसे करेगा, Okay. तो आपने भी करा होगा. हाँ, एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी स्टूडेंट तो नहीं, मेरा मास्टर्स हो गया है 2022 में. आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग बिफोर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स. आई विल अगेन टेल यू दैट afterwards in the podcast. Yeah, so first of all, like, you have to complete all of your documents, so just like your 10th degree, 10th class का certificate, 12th class का, then your engineering degree, all of the documents. Even they asked me for my all semesters results, because from first semester till the 8th semester I did my bachelor's in mechanical engineering. So they asked me all of these transcripts, and yeah, you have to prepare all of your documents, and then you need to get them attested, and yeah, so then you can shortlist your all the universities in your field what you have studied. So there is a website called DAAD. So it's you can just Google it, DAAD, DAAD International Programs, and just filter. So if you want to do you can select their programs like bachelor's, masters, and again there's some short courses also. You can look for PhDs also. So just click apply filters according to your preferences. I selected for masters, and that too only in English language, because they here in Germany they do offer courses in German and English, obviously. Yeah, so I filtered out, and then I found some 16, 17 universities, and from that only, so like they had some different kind of requirements for this English language requirements also. And then I applied, I guess, 10 or 11 universities from that DART portal only itself. And then yeah, because so DART is a like middle company, I would say. So they first you apply to them, they will check all of your documents, and then they will transfer it to the universities, and then the universities will check. सो देयर इज नो वे कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको यूनिवर्सिटी को. No, there is a way. There is a way, because some universities they want to get their applications through DART. Oh, okay. Yeah, because like they are the third party. They check your documents thoroughly and everything, so it gets processed through them. So it's easier for universities again to decide. So Okay. I applied through them, and I got admit to one university here, and yeah. So once you get the admission, then again there are some different processes. You need to do your blog account for masters. So that time I guess it was roughly around 7,000 euros के करीब कुछ तो था. Then yeah, so you उसके बाद में आपको आपकी स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट होनी चाहिए. Even that time I guess it was, for me it was, the center was Mumbai. And yeah, so you need to submit all of your documents to the Mumbai consulate for this master studies. And then again, for me, I clearly remember, so they asked me, even I was so I didn't know anything. I just thought कि आपको जाके वहाँ पे just document submit करना होता है. I went there, and then they asked me, okay, just they gave me a blank paper something, and then they asked me, okay, just write some who invented. Right, they gave me a name of the scientist, and then just told me to write something about him, just like an essay. Oh, okay. I was completely blank, but I knew because I studied those things in my mechanical engineering. Okay, so I just somehow managed to write those things, and then yeah, I got selected and I got my visa. So this is the complete process. Yeah. ओके, सो जैसे शुरुआत में आपने बोला था कि ट्रांसक्रिप्ट करानी पड़ती है, तो हमारी Exactly. जो डिग्री होती है जनरली वो इंग्लिश में ही होती है, तो जर्मन Exactly. लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करानी होती है. नहीं, उसके लिए जो आपको डिग्री मिलती है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स यू नीड टू अटैच दैट. एंड उसके अलावा आपको एक ट्रांसक्रिप्ट भी आपकी यूनिवर्सिटी से, लाइक आई डिड माय मास्टर्स इन पुणे यूनिवर्सिटी. तो आपको एक पुणे यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन करके आपको, देन दे विल जस्ट गिव यू अ ट्रांसक्रिप्ट जस्ट फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द मास्टर्स इन एनीवेयर. सो एनीवेयर. आपको उसके या एग्जैक्टली, तो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है.
then you have to attach that. And because our जो degree है, so German universities, they doesn't know about like what is Pune. They know Pune University, but there are again so many universities in India, so they are not accredited here, or they do not know. The German universities do not know about the Indian universities. So for that reason, आपको वो डिग्री जो है उसको एक अपोस्टाइल करना होता है. एंड आई डिड इट Hostile. फ्रॉम या एग्जैक्टली. सो देयर इज दिस फॉरेन मिनिस्ट्री in Delhi, so I sent my degree to them, and then it took around 1 week to get it apostille, and then again they will check everything, and they give you the stamp of this foreign ministry, so that the degree is valid or it's real. MEA, What is Ministry, exactly, yeah. MEA. Yeah, exactly, Ministry of External Affairs, yeah, Mhm. exactly, yeah. So you Okay. get it So apostille through them. that apostille you did directly or through some agent? I did it through some agent. Because Yeah, directly you cannot send, because you send that exactly, I yeah. send directly. Directly, technically they don't receive, Exactly, they don't yeah, entertain. Again, yeah, that's exactly. frustrating process, but you cannot do anything. Okay. Yeah. So okay. आपको कॉलेज मिल गया, आप जर्मनी, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, कॉलेज मिल गया, उसके बाद जब आप लैंड करे, सो एक्चुअली जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है, जो कॉलेज Yeah. सिलेक्ट किया आपने, वो एक्चुअली जीरो फी है? Not zero fee. It was, I guess, 94 euro per semester, Amira. 94. So 94 euros. So approximately that time, I would say it was around 6,000-7,000 or 8,000 euros, 8,000 rupees, Indian rupees per semester. Again, it's like nothing. Yeah. Almost zero only. Almost zero only. Exactly. Almost zero only. Almost zero. 6,000 Yeah. में क्या आता है? हाँ, ठीक है. exactly. And So what about living expenses? so yeah, there is an interesting story. So मुझे जो यूनिवर्सिटी मिली थी, तो the course, it was partly mechanical and partly some other like civil course था. तो मुझे एडमिशन मिला, मैं जर्मनी आ गया. फर्स्ट फ्यू डेज फॉर 1 week, आई गेस 1 or 2 weeks, आई डिड ऑल द लेक्चर्स, सब कुछ था. बट मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इट्स मोर टुवर्ड्स सिविल. सो इट वाज इतना मैकेनिकल वाला पार्ट नहीं था उसमें. तो फिर मैं आई जस्ट आस्क्ड माय प्रोफेसर, ओके सर, आई एम जस्ट लर्निंग ऑल द सिविल सब्जेक्ट्स एंड आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट. सो प्रोफेसर सेड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे. तो आई जस्ट आस्क्ड माय सीनियर्स, सो दे सेड या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. सो मुझे था कि मुझे प्रॉपर प्योर कोर मैकेनिकल में जाना है कुछ तो, बिकॉज आई स्टडीड दैट थिंग इन बैचलर्स. या तो मैंने दैट सेमिस्टर ओनली आई चेंज्ड माय कोर्स, बिकॉज मुझे जितने भी सीनियर्स थे, जिन्होंने भी मतलब जिनसे भी मैंने पूछा, तो they said, okay, if you want to change your course or your university, just wait for this first 6 months for this semester, and then you apply, because it's really difficult. Because as soon as you land here and you have already started your masters, and if you want to change it now, so it's really difficult. But मुझे था कि नहीं यार, मुझे 6 महीना भी क्यों वेस्ट करना है. तो मैं जैसा आया, 2 week लेक्चर्स अटेंड किया, आई अप्लाइड. मुझे लगा कि नहीं हो रहा है मुझसे ये, तो आई अप्लाइड टू सम डिफरेंट यूनिवर्सिटी. And luckily, I got admit in the same semester to some other universities, and there I did my masters in uh, metallic materials technology. Yeah. Okay. So हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि स्टूडेंट एज अ अकोमोडेशन का कितना होता है, सो मेरा था ऑलमोस्ट 220 euro. सो अगेन if you convert it, so it was 20,000 rupees per month, and then again you have to pay 100 that time before 7 years. So it was 110 euros or 90 euros maybe for this health insurance. So 200 for the rent, 100 euros for your health insurance, and then again it depends on your expenses. So if you eat out suppose weekly or twice in a week, so again it depends on your 2,500 euro पकड़ के चले. like 300-400 euros, I would say, as a student. 2,500, so it's really like big amount. So 200 for a euros year. for the rent. Okay. Yeah, I'm talking about per month. Monthly. So yeah, so 200 euros for rent, 100 euros for your health insurance, and then again for public transport traveling. That time again it was not covered in my semester ticket. So for me it was 400-500 euros per month, my complete expense. 500 euros per month, and So- ये आपको खुद सपोर्ट करना पड़ेगा. गवर्नमेंट, I mean, that is your funding. Government Exactly. is Yeah. okay. So ये अपना, because as I already told you कि हमें before coming to Germany we have to put some money in our block account. So that block account money you can use it here. So
उसका Yeah, पर्पस ही वो they होता है pay कि you यू per या month. एग्जैक्टली सो देयर आर It's लाइक सम similar. Okay, sorry. नो नो This system is very similar to Canada. They also make a account like this, and उसमें पैसे आपके रहेंगे. So per month वो आपको देते हैं. So you एग्जैक्टली can use that money. Okay, एग्जैक्टली now go. बट जर्मनी में आई गेस देर आर सम बैंक्स सो उनका ऐसा है कि लाइक दे विल गिव यू पर मंथ दे विल गिव यू लेट्स से फॉर 1000 euros per month and or 700 euros per month because that time 7,000 was the amount you need to block and 700 euros if they give you so it will last for 10 months for example but मेरे केस में ऐसा था कि they transferred everything that 7,000 euros directly into my account so I didn't get money in every month so it was completely for in I got everything in only in the first month so First ये month. था मेरा yeah, exactly. And then it's on you how you use it. Yeah. So if you use it wisely, you can stretch it, Makes let's say, for sense. 1 year. Yeah, exactly. Oh, So, let's say कोई जैसे आपने ज्वाइन करी यूनिवर्सिटी उसके बाद कितने टाइम बाद काम करने लग सकते हैं? um, yeah, again, मैं तो आई गेस मैं अक्टूबर में आया आई स्टार्टेड ऑलरेडी इन दिसंबर सो इट वाज लाइक वेरी शॉर्ट टाइम आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग so I came in October so November and I already started working for this Christmas and New Year because here yeah I clearly remember my first job वो एक होटल में था I worked there as an for this waiter so for this Christmas and New Year thing so I clearly remember so I already started in within 2 months so you can do it depending on your visa status because some cities they take a very long time to process your visa because जब आप जर्मन इंडिया से जर्मनी आते हो तब आपके पास जो पासपोर्ट पे भी जो वीजा स्टैंप होता है तो उसका इट वैलिडिटी इज ओनली फॉर 6 months तो आप एज सुन एज यू लैंड इन जर्मनी और एनी अदर कंट्री सो आपको वीजा एक्सटेंड कराना होता है एंड देन दे विल गिव यू सम कार्ड and with that they will give you some paper so that it says that you are legally eligible to work in Germany and for students it's like 20 hours per week or per month 20 hours per पर वीक. week I इट शुड guess बी yeah पर वीक आई exactly थिंक. yeah, तो exactly so ये 20 ये hours तो सारा सेम है. आई हाँ थिंक सभी एग्जैक्टली जगह एग्जैक्टली 20 वीक का ही होता है. यूएस, हाँ कनाडा, जर्मनी, एग्जैक्टली हर जगह पे. एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली तो यू कैन वर्क मैक्सिमम 20 hours पर वीक तो बस मैं फिर बट हमें जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज इवन कंपनीज भी बंद होती है क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पे तो मेरे पास तो फ्री टाइम था तो बस मैंने वो 2 weeks आई वर्क देयर फॉर दिस होटल थिंग एंड देन आई एज सुन एज माई यूनिवर्सिटी अगेन ओपन फॉर द न्यू सेमेस्टर then I stopped working. So it doesn't matter कि आप कब आ रहे हो बस if you have your visa and that paper that you are eligible that you can work in Germany so it's not a problem. लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्क थिंग मोर. तो जैसे आपने बोला Mhm. कि तो दिसंबर के टाइम पे छुट्टियां थी तो आपने काम किया. उसके बाद आपने Yeah. काम नहीं किया. उसके बाद आपने Mhm. क्यों काम नहीं किया? Because for me everything was new here and the part like where I did my masters in Freiberg so it is in the eastern part of Germany, and there it snows like hell. So that time the temperature was -16, -18 degrees, and again it's really difficult, you know. And the job I was doing it was not in that same town. I had to travel 4 hours with multiple connections train connections and then again so that was like a really hectic for me because I used to travel on Friday afternoon. I will reach there Friday evening and then Saturday and Sunday I will work for 2 hours and then again Sunday evening I will come back. So it was again hectic for me. So that's why I thought, okay, first let me focus on my studies because everything was new. मैं यहाँ पे किसी को पहचानता भी नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो थोड़ा स्लोली टाइम लगा सब कुछ चीजें यहाँ पे समझने में, जानने में कि किस तरह से होता है, क्या होता है यहाँ पे. तो इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई मेट रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन हियर सो लाइक दे आर स्टिल फ्रेंड्स सो उन्होंने मुझे काफी हेल्प की इन सब चीजों में कि मैं उनके साथ में फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा तो थोड़ा सा मुझे समझ आया कि हाँ किस तरह से जर्मनी में काम होता है. यू डू नॉट जैसा एक चीज हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया में है ना हमें लगता है कि यार सक्सेस एक जस्ट लाइक एवरी डे वी कीप हसलिंग यू नो लाइक हमें ऐसा कि हमें बस सिर्फ बिजी रहने में अच्छा लगता है. बट जर्मनी में एक समझ आया कि आप सिर्फ हसलिंग करने से या फिर सिर्फ बिजी रहने से या फिर ज्यादा काम करने से आप सक्सेसफुल नहीं बट अगर आप ब्रेक भी लेना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो इट मेक्स सेंस. तो जिससे आप दोनों चीज इवन आपकी स्टडीज एंड आपका वर्क लाइफ भी थोड़ा मैनेज कर सकते हो. तो यू डू नॉट
नीड टू बी हसलिंग ऑल द टाइम। सो ये चीज मुझे समझ आई। तो फिर और एक तो हमारा एग्जाम्स भी आ रही थी, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स। मैंने सोचा कि हाँ, फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स लिया, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग। ओके, टू गेट मोर क्लैरिटी, सिंपल आप आंसर देना कि फिर आपने जब आपने दिसंबर में काम छोड़ दिया थोड़े टाइम करने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा जॉब आपने कब शुरू की, कितने टाइम के बाद? जब मेरा सेमिस्टर ब्रेक आया था, तब फिर उसके बाद में मैंने अगेन जॉब स्टार्ट कर मतलब दी थी। अगेन आफ्टर 6 मंथ हाँ, या अप्रोक्सीमेटली। ओके, हाँ, सो जो अभी मुझे समझ में आया कि आपने जॉब इसलिए नहीं कैरी ऑन कर पाए क्योंकि इतनी जॉब अवेलेबल नहीं थी, आपको 4 घंटे दैट टाइम। ट्रेवल करना पड़ता दैट टाइम। सो या जर्मनी में कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको जॉब अवेलेबिलिटी इतनी कम ही मिलेगी, इतने आसानी से जॉब मिलेगी नहीं। क्या इसको जनरलाइज समझ सकते हैं? नहीं, ये इतना 100%, लाइक आई विल से इट्स पार्शियली ट्रू, बिकॉज जब मैं आया हंड्रेड था। परसेंट नहीं, आई एम नॉट नहीं, गोइंग विद 100%, आई एम गोइंग विद मेजोरिटी, आई एम गोइंग विद, इज इट ट्रू 70-80% लाइक दैट? it depends. Like in Germany, I would say, because it's completely different. Because here you need to have your German skills. Otherwise, it's really difficult. So जब मैं आया था जर्मनी, मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगा कि कोर्स इंग्लिश में है यहाँ पे, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही आइडिया था कि हाँ, एवरी फॉरेन कंट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होंगी, स्काई स्क्रैपर्स होंगे यहाँ पे, सब कुछ होगा। जस्ट लाइक मेरे दिमाग में इमेज ऐसी थी कि जस्ट लाइक अमेरिका वाली इमेज थी, क्योंकि जब हमें मूवीज में सब कुछ देखते कि हाँ, टॉल बिल्डिंग सब कुछ ये होता है, एवरीथिंग लाइक दैट। तो जब मैं इससे लैंड हुआ यहाँ पे, और जो मेरे टाउन था वहां पे कुछ नहीं ऐसा था, कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो था मेरे लिए। और वहां पे द ईस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी, सो दे प्रीफर that you should have a German skill, otherwise it's really difficult to get a job, but मुझे तो कुछ नहीं आता था यहाँ। तो for that reason मुझे एक ऐसी जगह पे था लोकेशन की जहाँ पे मुझे इंग्लिश बात करना ना पड़े, तो for that reason मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता था। बट अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, अगर आप बात कर सकते हो, तो अगेन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन ओके, एनी सिटी, और इवन इन अ स्मॉल टाउन। ओके, तो इन केस अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज की स्किल नहीं है, देन जॉब मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो आपने फेस करी और आपने बताई भी। हाँ। इन केस अगर आपके पास स्किल सेट है, देन आपको जॉब बड़े आराम से मिल सकती है। एग्जैक्टली। करेक्ट, टू बी गेट द सिनेरियो कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो हो सकता है 100 लोगों में से आप वो 10% हो जिनको शायद जॉब मिल जाए, मतलब 10% रेशियो होगा मिलने हाँ। का। और अगर आपके पास स्किल सेट है लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज आती है, तो हो सकता है 90% आपको जॉब मिल जाएगी। करेक्ट? Exactly, yeah. Yeah, you can say ओके, that. ओके, And for that सो 10%, I would say again, you have to be lucky to get that job. सो Yeah, तो टू बी वेरी प्रिसाइज, 10% भी yeah, कम चांस है इंग्लिश के साथ, तो exactly. मे बी जर्मन के साथ ज्यादा चांसेस होंगे। Yeah. ओके, सो आफ्टर 20, 2 साल का कोर्स होता है मास्टर्स, ठीक हाँ, है? हाँ। तो कब रेगुलरली काम कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर 40 आवर्स? 40 आवर्स का काम करने के लिए, क्योंकि 18 में आया, 19 के एंड या फिर 20 के स्टार्टिंग में तो कोरोना स्टार्ट हो गया था, सो दैट टाइम सब कुछ ही बंद था, पूरे दुनिया में सब कुछ बंद था, तो कुछ नहीं किया, सेम जस्ट लाइक अदर्स। आई अगेन स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम जस्ट वॉचिंग यूट्यूब, समथिंग लाइक दिस। तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ, कुछ तो जर्मन एटलीस्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे ना तब दैट टाइम मेरा ऐसा था कि मेरा कोर्स खत्म होने में आया था, और मुझे यहाँ पे जैसा एक मास्टर थीसिस जो अपन लिखते हैं, जैसा बैचलर्स में भी अपन प्रोजेक्ट जैसा होता है, तो वो था मेरे लिए, बस वही बचा था मेरा। तो मुझे उसके लिए ना चाहिए था कि बिफोर दैट आई वांटेड टू डू एन इंटर्नशिप। मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, सब कुछ ये किया, बट सब रिजेक्शन आ रहा था, और मुझे एक रीजन, फिर मैंने कंपनीज को एटलीस्ट खुद से कॉल भी किया कि जस्ट टेल मी द रीजन बिकॉज व्हाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड। तो एक कंपनी ने बताया कि दे वांट समवन हु कैन स्पीक जर्मन। सो मुझे तब रियलाइज हुआ कि हाँ, आई नीड टू लर्न जर्मन। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्लोली जर्मन सीखना स्टार्ट किया, लोगों से बातें किया। अगर आप सिर्फ कोई जर्मन स्कूल या फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूट में सिर्फ जाके अगर जर्मन सीखते हो, तो अगेन इट्स नॉट दैट वर्थ। तो क्योंकि बस आप वहाँ पे सीखते हो, बस वो होमवर्क घर पे आके करते हो, एंड देन अगेन यू फॉरगेट एवरीथिंग। सो जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं, मतलब नहीं इम्प्रूव कर पाओगे आपकी जर्मन। तो बस ऐसा है कि आप अगर फुल टाइम अगर आपको जॉब करनी है, तो फॉर दैट यू नीड टू कंप्लीट योर मास्टर डिग्री, एंड देन यू आर eligible or allowed to do a full-time job. Yeah. ओके, आफ्टर 2 year और only, once you complete no, your no, degree, then proper. yeah, exactly. It doesn't matter if you complete your degree in 2 years or 3 years or 4 years, but you need to complete your master degree, and then only you are eligible to work full time. फुल टाइम, गॉट इट। Yeah, exactly. एंड जो लेट्स से मास्टर्स के बाद कितने साल का वीजा मिलता है काम करने के लिए? मास्टर्स के बाद में, सपोज अगर आपके पास मोस्टली यहाँ पे बैक इन
2018, 19, 20 I'm telling. So that time ऐसा था कि यहाँ पे इतने इंडियन स्टूडेंट्स नहीं थे because most of the Indian students they were preferring Canada, US, then again Australia, some different English speaking countries or UK for example. No one was preferring Germany that time, but now uh, mostly It's students they are preferring Germany because of its work-life balance and everything for no, so many because reasons. in US, Canada, it's being very hard. So that's why Yeah, you people can are say moving that. to Yeah, Germany. exactly. So that time again, it was really easy to get job before finishing your master's degree. So Mhm. ऐसा था. But अगर if you do not get a job before finishing your master's degree, so then the government or there is an office called Ausländerbehörde. Then they will give you a visa for 18 months to look for a job. And if you do not get a job in those 18 months, in worst case, they will say, okay, you need to go back to your home country, or in the best, like mostly they will extend your visa, let's say for 3 4 months, or let's say for 6 months again, and then you get a job. And what about current scenario? Current scenario for job, so yeah, again it's really tough at this time. Yeah, a good example would be mine, I would say. I can give you. So, I was working in a company for 2 years almost, and then suddenly I came from my work. I just checked my like everyday routine. So I just checked my post box here, and then I saw a letter from my company. So and just I read it. So they said you have been terminated. You do not need to come from tomorrow to the office from tomorrow. I said, okay, yeah, what happened exactly? So then and it was Friday, so I couldn't do anything on Saturday, Sunday. So then I went back to office on Monday, and then I asked my manager. He said, "Hey, he didn't even know anything about that." So he just called our then HR department. Then HR department said, "Yeah, we have took some tough decisions. We have to terminate few employees." So in total, my company they have terminated 25 employees, and because of the financial reasons. And yeah, so the current scenario in Germany, it's really difficult to get a job. But if you have a German skills and good experience, again, it's not that difficult. Experience means what? In Uh, what kind of a skill set they are still hiring? so like I have did my my masters in metallurgy. So I can tell I can tell you about my field. So for metallurgy, so if you are experienced, let's say if you have already worked on in this field, so then yeah, there are good chances that और you will get इस hired. Yeah. इस फील्ड में होता क्या है? सॉरी, आई डिडंट नो. Okay, so metallurgist is like we study different kind of metals. Oh, metal Yeah, so I worked for Tesla for 1 year in Berlin. There is a big plant for the Berlin मैन्युफैक्चरिंग Gigacasting. Yeah, प्लांट. exactly. So they produce the Model Y. So that time they were producing Model Y. I guess they have started again with I'm not sure with Cybertruck or some other Model S. They have started again. So that time, so like they are producing car with just two parts, and they are casting a really really big part, and it's made up of aluminum, and not pure aluminum. So but with some different alloying elements. So they use different like I cannot tell you which alloying element, so but they use something like this. So I studied those things. So and again, so that field, it's really very rare here in Germany, because everyone they are shifting to IT and AI and robotics and all of those things. And for that reason, I think there are very few universities or few courses which offers this metallurgy kind of things, or the materials engineering courses. So there are again few. So if there are few courses or few universities who offer those courses, then again there are few students, and then but Germany want more of those, because Germany was a automotive hub. It was called as an automotive hub back in, like, let's say till 4 5 years back, because now most of the automotive companies, or the because Volkswagen comes from here, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, everything comes from here. And but अभी थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो गया है because of the energy prices, and थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है चाइना. जर्मनी में, तो एग्जैक्टली सो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा जर्मनी भी अभी इतना स्ट्रांग रहा नहीं पहले जैसा. तो अगेन इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, आई वुड से. Yeah, but if you have some skills and German language, I'm always focusing on German skills. So if you know German, so again, it's not a big deal for you.
to get a job? It will be easy. I have done couple of podcasts जैसे फ्रांस Mm-hmm. में, जर्मनी में, और भी आई थिंक लातविया, Mm-hmm. Yeah, I लुत्वानिया, watched. देयर आर आई Mm-hmm. मीन मल्टीपल मैंने करी है। आई थिंक ये Mm-hmm. 16th पॉडकास्ट है। Mm-hmm. सो तो कॉमन सिनेरियो यही है यूरोप का, या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो अगर वहां पे हाँ. जा रहे हो, तो अगर हम्म, उनकी नेटिव लैंग्वेज को आप सीख लोगे, तो हाँ. तभी आपको बेनिफिट होगा। इंग्लिश के साथ बेनिफिट केवल कनाडा हाँ. और यूएस में हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, और हाँ, वहां पे फॉर भी सिनेरियो एग्जाम्पल. उतना अच्छा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली. तो हाँ, यूरोप का आई वुड से कि इन्हें लाइक दे प्रिफर समवन हु स्पीक्स देयर लैंग्वेज, सो थोड़ा इजी हो जाता है उनके एवरीबडी लिए भी. एवरीबडी एवरीबody, प्रेफर even in somebody। India, even in India now, like like some scenarios are going on In that India, you should it's speak the like complete. regional language. Yeah, exactly. That this is So completely stupidity कि yeah, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि मराठी बोलो, exactly, और exactly. एक दो वीडियो मैंने देखी थी पंजाब में, वो बोलता है कि पंजाबी बोलो। Uh, कंप्लीटली स्टूपिड। ऐसा exactly. साउथ इंडिया में तो होता था, बट महाराष्ट्र में भी होने लगा, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये exactly. सब Yeah, yeah. बेवकूफी है ये तो। खैर, हाँ, लेकिन exactly. उनका कंट्रीज का समझ में आता है, क्योंकि देयर थिंग्स आर मोस्टली, दे डोंट प्रेफर इंग्लिश। उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, दे आर इन देयर नेटिव हाँ, लैंग्वेज। तो exactly. वो Yeah. पता होना जरूरी है। ओके, गॉट इट। तो Yes. अभी जॉब का क्या सिनेरियो है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यूएस कनाडा में तो उतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो हाउ अबाउट जर्मनी? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जर्मनी आईटी पे डिपेंड नहीं करता। जर्मनी डिपेंड हाँ, करता है मैन्युफैक्चरिंग पे, ये exactly. कार वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग पे। तो Exactly. जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पे भी सिनेरियो इतना ही बेकार है, जैसे आप यूएस कनाडा का ही देखते हो कि कंपनीज फायर कर रही हैं, आईटी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यूएस का या फिर कनाडा का इतना मतलब सुना है न्यूज, बट कितना ले ऑफ हो रहा है वहां पे इतना एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता मुझे. बट जर्मनी में भी मैंने रिसेंटली सुना कि बॉश सीमेंस हो गया, एंड देन अगेन बॉश सीमेंस फोक्सवैगन, या सो ये तीन कंपनीज मिलके लाइक दे आर प्लानिंग टू डू सम बिग ले ऑफ इन द कमिंग मंथ्स. बट एग्जैक्ट नंबर तो अभी पता नहीं है. बट चल जर्मनी में चल रहा है ये सब कुछ चीजें. इवन आई गॉट laid off in October. Yeah, so yeah, starting November. So again, it's really not same scenario like it was used to be. But Germany is again on the same path like America and Canada. तो आपको Yeah, जॉब मिल गई है? हाँ हाँ, मिल गई है. कितना टाइम लगा जॉब मिलने में? मैं तो लाइक जर्मनी में अगेन देर इज दिस थिंग कॉल्ड इफ यू गेट लेड ऑफ देन देर इज दिस ऑफिस कॉल्ड एज एन Arbeitsagentur. So like they take care of you, and then they will pay you a salary based on your average 3 year salary. And then yeah, so मुझे तो ऐसा था कि वो सब चालू होने से पहले ही मुझे नेक्स्ट जॉब मिल गई थी बिकॉज ऑफ आई वुड से अगेन बिकॉज ऑफ जर्मन लैंग्वेज सो एंड एक्सपीरियंस. सो अगेन मुझे तो नवंबर में था, तो मैंने ना इतना अप्लाई, क्योंकि मुझे पता था कि नवंबर एंड दिसंबर वाला मोस्टली जो टाइम होता था कि क्योंकि यहाँ पे लोग कोई काम नहीं करते इतना, ऑफिसेज वगैरह सब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लोग सब हॉलीडेज पे होते हैं. तो मुझे इतना था कि क्योंकि एक तो तुम जॉब पोस्टिंग्स भी बहुत कम होती थी, तो मैं बस थोड़ा सा देखा, ठीक है मिल रहा है तो अप्लाई कर दिया, ऐसा था. बट आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन जनवरी, एंड जनवरी भी मतलब एट द एंड ऑफ जनवरी मुझे जॉब मिल गया, and ये मंथ से मैंने स्टार्ट भी कर दिया वापस. ये इस मंथ से शुरू या किया है आपने काम करना? एग्जैक्टली. ओके, सो अभी सो जैसे ऑटोमेट, आपको क्या लगता है ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रही है कंपनियां, सीमेंस, बॉश एंड वोक्सवैगन, इसलिए हायरिंग नहीं कर रही, या इसलिए फायरिंग कर रही? क्योंकि चाइना में तो ऑटोमेशन चलता है कार वगैरह में, तो क्या ऐसा ऑटोमेशन आप? तो चल ही रहा है बिकॉज ऑफ दिस AI थिंग. अगेन jobs are in danger, not jobs are not in danger. The person who are using it, they can replace you if you are not, if you do not grab that opportunity, or if you do not learn those things, this AI things. And again it will be difficult for you to get a job. So automation still, they are applying those things. And बिकॉज जर्मनी के पास में ना भी वो इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिर जो पहले जैसा जो था उनके पास कि हाँ दे वे आर नोन फॉर दिस ऑटोमोटिव थिंग, प्रोडक्शन थिंग. बट अभी उतना रहा नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, एंड अगेन टैरिफ्स बहुत ज्यादा इंक्रीजेस हो गए अभी जर्मन यूरोप पे या फिर जर्मनी पे. एंड देन देर आर दिस कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना टू. सो इन सब चीजों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से थोड़ा अभी जर्मनी स्ट्रगल कर रहा है. की अपनी समस्याएं हैं हाँ, और बहुत ज्यादा। जर्मनी में भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि इन लास्ट टाइम बहुत ज्यादा लोग जर्मनी में आ गए. अगेन इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल दोस थिंग्स. एंड उसके बाद में देर आर अगेन सो मेनी स्कीम्स आर गोइंग ऑन. मैंने जैसा बताया कि अगर
अनएम्प्लॉयड हो तो गवर्नमेंट दे विल पे यू। सो अगेन सो इन सब चीजों की वजह से आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट फॉर जर्मनी कि उनके पास अभी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है, बट अगेन दे शुड डू समथिंग टू गेट बैक। सो जो वो पहले थे वैसा आने में उन्हें भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। कितना दिस इज टाइम? व्हाट आई थिंक। इट्स रियली डिफिकल्ट। सो अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि क्या होगा, किस तरह से जर्मनी इंप्लीमेंट करेगी, क्या चीजें इंप्लीमेंट करेगी। अगेन इट्स नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट दे आर टेकिंग सम एक्शंस। जो मुझे लगता है कि हाँ, जो न्यूज में वगैरह पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि, बट अगेन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम कि they have to take care of all the citizens, you know. So and ऐसा नहीं कि हाँ they will take some strict decision um, um, or extreme decisions, so वो भी नहीं कर सकते। तो again it's really difficult to get back. लेट्स से कोई बैचलर्स कर रखी है किसी स्टूडेंट ने इंडिया में, अभी हम्म वो सोच रहा है जर्मनी को परस्यू करने का, और उसके मन में जर्मनी का ड्रीम इसलिए है क्योंकि जर्मनी में एकेडमिक्स के कोई पैसे नहीं लगते। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, जस्ट फॉर लिविंग एक्सपेंसेस 2000 यूरो के करीब खर्च हो, सॉरी 200 500 यूरो यूरो के करीब बेसिक, हाँ 200 यूरो हाँ के करीब बेसिक एक्सपेंस, और बाकी सब इंश्योरेंस वगैरह मिला के हाँ अप्रोक्सीमेटली 500 यूरो होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज, राइट, हाँ 45 to एग्जैक्टली 50,000 रुपीज पर हाँ मंथ। पर मंथ सो एग्जैक्टली। हाँ, और अगर 20 आवर्स वो ठीक ठाक सिटी में अगर जर्मनी सीख भी लेता है तो शायद 500 यूरोज तो रिकवर भी कर सकता है, इतने हाँ पैसे हाँ तो इजीली मिल भी इजीली जाएंगे। सो इजीली yeah, easily you can I mean you can do your masters probably zero cost। ठीक है, एग्जैक्टली। अभी अभी मान लो अच्छे सिनेरियो के साथ उसने जीरो कॉस्ट में कर तो ली, बट अगर उसको हाई पेइंग जॉब ही नहीं मिली तो इंडिया से जर्मनी आने का सेंस क्या बनता है? अगर सपोज अभी अगर इफ समवन इज कमिंग दिस ईयर, लेट्स इन 2026, अब समवन इज कमिंग फॉर देयर मास्टर्स, तो देन अगेन उनके पास काफी अच्छा टाइम है फॉर, बिकॉज मास्टर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, तो जैसा हर जगह पे भी। तो 26 and 27 they have 2 years to do their masters, and in those 2 years so they can again do some internships and get some practical experience. So it's a really nice time for them to come into the 26 and finish their masters, let's say in 2 or 3 years, and then by this time again the German economy again it will rise hopefully, and then that time again they will get some really good jobs. ओके, So it's सो not a bad decision to come at this time. ओके, मतलब इट्स लाइक इफ इट गोज अप Yeah, देन इट्स लाइक yeah, यू आर प्रेडिक्टिंग इट, बट yeah. हाउ बैड थिंग्स आर इन जॉब मार्केट इफ यू गिव मी मोर सिनेरियोज? How bad it is. आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, इफ यू आर ओपन uh, फॉर दैट? uh, I'm sorry, I'm not comfortable sharing those एक things. एक एक रेशियो अपने दोस्त का बता दो यार, अपने दोस्त की सैलरी बता दो। दोस्त की सैलरीज अगेन, सी मुझे जितना पता है ना, जब मैंने मेरा मास्टर्स किया तो दैट टाइम वी वर ओनली 8 स्टूडेंट्स, सो इन टोटल 8 स्टूडेंट्स। तो और उसमें से मोस्टली 2-3 तो शायद इंडिया भी वापस चले गए, एंड देन सम ऑफ दोस दे आर स्टिल हियर, आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद देम, बट इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर फील्ड, व्हाट you are doing, and if you are working in IT or something like this. But again, back in 2000, let's say 22, for before 3 years again. So if you are starting something as a fresher, if you do not have any experience, then you can start with 50,000, or yeah, something like this on an average. 40,000, 50,000 45,000, yeah, 45 to 50,000 as a fresher. फॉर ए ईयर, 45,000 फॉर ए ईयर, Exactly, yeah. Or ईयरली। 50, सो yeah, yearly. तो यूएस के कंपैरिजन में दिस इज लेस। Yeah, exactly, yeah, बहुत ज्यादा लेस है ये, मतलब बहुत ज्यादा काफी कम है ज्यादा यहाँ पे। लेस है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। बट स्टिल सिंस इन यूएस डिग्री आपको लोन लेना पड़ता है करने के लिए, यहाँ पे हाँ लोन नहीं हाँ। लेना पड़ रहा, तो शायद वो मेरे हिसाब से एक एडवांटेज है वो एक है, बट यहाँ पे। अगेन जर्मनी में भी देर आर सम यूनिवर्सिटीज, दोज आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, देयर यू पे अराउंड 20 लाख रुपीज द इंडियन करेंसी, आपको उतना फी देना होता है वहाँ पे, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स दे चूज दोज यूनिवर्सिटीज फॉर सम रीजंस, आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजंस हो सकते हैं, बट देन अगेन देर आर स्टिल सम यूनिवर्सिटीज हियर, दोस लाइक यू हैव टू पे अ हेवी फी टू देम। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर कैलकुलेशन, सो महीने का अप्रोक्सीमेटली 3750 यूरो के आसपास मिला। अब हाँ इसमें हाँ 4,000। लेट्स से अगर अभी जॉब कर लिए तो थोड़ा
सिंगल रूम में रहेंगे समथिंग, तो कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ, जब अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप मास्टर्स करते हो तो अगर आप कोई एज अ स्टूडेंट है ना आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाता है रूम वगैरह, बट जैसा अगर आप एंड दैट टाइम यू डू नॉट हैव टू पे फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर योर वाईफाई जब आप स्टूडेंट होते हो, बट एज सुन एज यू फिनिश योर डिग्री एंड कोई आप डिफरेंट सिटी में मूव होते हो फॉर जॉब समथिंग फॉर एनी रीजन, तब आपको यू हैव टू पे फॉर वाईफाई फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी एंड देन अगेन इट कॉस्ट यू लाइक अराउंड 100 euros एक्स्ट्रा फॉर दोज थिंग्स। एंड अगर आप सिंगल पर्सन एक स्मॉल छोटे से रूम में अगर कुछ रहते हो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन सम सिटीज। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम मुझे रिसेंटली पता चला, मेरे कलीग ने मुझे बताया कि उसका बेटा, मेरे कलीग का एक बेटा है, तो उस वो ने म्यूनिक में पढ़ता है, ही इज लिविंग इन 15 square meter रूम, इट्स लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल रूम, 15 square meter, and he is paying 900 euros as a rent in Munich. But again, if you go in some other cities, so you can get 1500 square meter, 1500, no, only 15 square meter room, 15 square meter room, that too for 300 or 400 euros maximum you can get. So again, it depends on which city you are living in. So there are like, it's a very wide range. ओके, तो Yeah. कमिंग बैक ऑन द कैलकुलेशन, 3750 यूरो आपको मिले, तो इसमें हाँ ऑब्वियसली हाँ, टैक्सेशन अभी डिडक्ट नहीं हुआ होगा, नहीं इसमें हुआ, नहीं हुआ। टैक्सेशन डिडक्ट होगा, तो कितना हाँ, परसेंट टैक्सेशन डिडक्ट सो होता है? ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर 3700 अगर आपको मिल रहा है तो आई गेस अराउंड 30% के करीब करीब उस पर कुछ टैक्स होता है जर्मनी में। इफ यू अर्न मोर देन 80 और 82,000 समथिंग लाइक दिस, तो देन यू हैव टू पे 42% टैक्स, 40 और ओके, 42% टैक्स। 30%। ओके, हाँ, थर्टी यू कैन। परसेंट टैक्स निकालने के बाद, लेट्स से मैंने 30% टैक्स निकाल दिया, अब बंदे के पास बचे हैं 2600 यूरो के आसपास। हाँ, अब 26 से उसमें 27 किसी, बचे। मान लो म्यूनिक या किसी सिटी में रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 900 यूरो के करीब रेंट हो गया, 800-900। हाँ, नहीं, ठीक है। अगेन देन इट डिपेंड्स कि अगर इवन आप, अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप म्यूनिक में स्टार्ट कर रहे हो, तो देन अगेन योर बेस सैलरी विल नॉट बी 50,000, इट विल बी 60,000 बिकॉज दे कंपनीज नोज दैट द रेंट आर टू हाई हियर, सो देन ओ अगेन इट एक्सपेंस। विल गेट एडजस्टेड, या ओके। yeah. So ओके, I'm लेट्स just telling अज्यूम on an average you. So like ऑन एन if you are, एवरेज। if someone is earning let's say 3,700 as a gross salary, and if they are getting 2,600 or 2,700 as their net salary, so then they are on an average the accommodation for the room it will cost you 600 or 700 euros a year. ओके, 600 रूम का रेंट हमने निकाल दिया, उसके बाद Mhm. फॉर फूडिंग, या इंश्योरेंस, नो, बिल्स। जब अगर आप जॉब करते हो तो देन इट गेट्स, तो आपको जो नेट सैलरी मिलती है तो उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता ओके। है, तो ओके, देन यू डू हेल्थ नॉट हैव टू इंश्योरेंस पे विल बी प्रोवाइडेड। सेपरेटली। हाँ, एग्जैक्टली, सो यू डू ओके। नॉट हैव टू पे सेपरेटली फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस। देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज्यादा बाहर होटल में खाना खाते हो, अगर आपके पास कुछ ज्यादा और डिफरेंट टाइप सपोज, बट अगर लेट्स आप गो कोई। विद सम सिनेरियो, 600 यूरो के करीब हमने निकाल दिए फॉर द रेंट। आफ्टर हम्म, दैट, फॉर, ऐसे मान के चलते हैं कि 30 दिन है, 30 दिन में से मे बी 20 दिन हम घर पे बना लेंगे, 10 दिन बाहर हाँ खाएंगे, हाँ, सो उसमें कितना खर्चा आएगा? व्हाट अबाउट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग, कितना निकाल के चले? इलेक्ट्रिसिटी का जो अगर मेरा है अभी, तो आई पे अराउंड 60 euros, 60, हाँ, पर मंथ, एंड देन 60 मेरा यूरो पर मंथ। या एंड देन अगेन वाईफाई का 60 euros समथिंग लाइक दिस। ओके, सो व्हाट अबाउट 120 euro मोबाइल बिल? मोबाइल बिल, या फॉर यू कैन 15 euros, so 20 euros you can say. ओके, 20 यूरोज फॉर द मोबाइल बिल। एंड Yeah. व्हाट अबाउट दैट फूडिंग थिंग? If you go out and your normal lunch and dinner, suppose it would cost you around again 25 euros or 30 euros 25 maximum euro per day, per 25 meal. euro Yeah, per bill. yeah, Per yeah, bill. So exactly. let's say 50 euro. So 500 if you are eating outside for 10 days, it will be Hmm. 500. Let's assume आपने 5 ही दिन खाया. So 250 हाँ, euros that, and for grocery how much? 250 euro for a month. for a single person, हाँ, 250 euros, it's okay. Okay. 250 or So 300 maybe. सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये बचा है आपके पास 1300 यूरो के आसपास। हाँ, एंड उसके अलावा कुछ और भी खर्चे आ सकते हैं, सम खर्चे एंजॉयमेंट जैसा और कि अगर समथिंग। जैसा, हाँ, वो एक हो सकता है, अगर आपके पास कार है तो फिर देन अगेन उसका भी पता नहीं, अगर आप इफ यू हैव कार बॉट इट ऑन इंश्योरेंस। लोन, कार इंश्योरेंस हो गया, कार का लोन अगर आपने इफ यू हैव बॉट इट ऑन लोन, सो देन अगेन उसका ईएमआई जाएगा, कार का इंश्योरेंस भी जाएगा, पेट्रोल जाएगा, बट आई डू नॉट हैव अ कार,
or either a license. I do not have that, but I use mostly travel by public transport, and then for that I pay 59 euros, I guess. Yeah, per 59 or month? 63. Yeah, 63 euros, I guess. So Okay. with that I can. So again, it's a really good thing, or the best thing I would say in Germany, that with that I can travel throughout the Germany. So it's not valid only for my city or not for my region, but I can travel throughout the Germany. So it's really a best thing you can do. तो अप्रोक्सीमेटली 1300 आपके पास बचे, उसके बाद लेट्स अज्यूम मंथ में कोई ना कोई मिसलेनियस खर्चा आ सकता है, सो हाँ हाँ, हो 300 सकता है। 300 यूरो उसके लिए भी निकाल देते हैं. हाँ 1000 यूरो somebody can save हाँ एक्चुअली. हाँ सो सो 1000 यूरो आप इंडिया भेज सकते हो अपने पेरेंट्स के पास, विच इज क्लोज टू 1 लाख रुपीज और समथिंग मोर हाँ देन दैट. हाँ हाँ, बट तो अगेन साल में 12 लाख रुपए. हाँ नॉट हाँ, हो नॉट सकता दैट है। मच. हाँ, नॉट दैट मच, बट अगेन इट्स अ फ्रेशर थिंग। और हो सकता है मेरा अजम्पशन भी गलत हो, क्योंकि अभी शायद फ्रेशर्स को भी थोड़ा ज्यादा सैलरी मिल। अप्रोक्सीमेटली. हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। अप्रोक्सीमेटली भी है, थोड़ा हाँ, और ऊपर या थोड़ा नीचे चल ऊपर सकता है. नीचे, या फिर हो सकता है कि देयर देयर रूम रेंट भी थोड़ा, अगर इफ दे आर लिविंग विद सम इन अ पीजी और द या, सो देन अगेन देयर यू विल पे अराउंड 300 or 400, then again you can save 300-400 euros there. Yeah, 300, 400 euros there. So again, it depends. So around 1000 to 1500, so you can save as a fresher. इट्स Yeah. ओके, डोंट फील गिल्टी. ये No, no, एजेंडा I'm ये not है कि feeling हम exactly. I'm just telling you not the Instagram version of Germany. I'm telling you the real version of Germany. Yeah, exactly. दिस इज द पॉइंट कि वो Yeah. एक्चुअली मतलब क्योंकि बड़ा आसान होता है ना ऐसे कैलकुलेशन करना कि हाँ, इतना मिल रहा है. वो हाँ, टैक्सेशन exactly. वगैरह के डिडक्टेबल को नहीं लोग काउंट करते हैं. सो वो Exactly. रियलिस्टिक पे बात कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि exactly. Yeah. जनरली यूरोप में टैक्सेशन ज्यादा है हाँ, और सैलरीज उतनी नहीं है जितनी यूएस में है, क्योंकि exactly. वर्क हाँ. लाइफ बैलेंस थोड़ा यूरोप में ज्यादा है ऑब्वियसली. तो वो आपको हम्म. चूज करना पड़ेगा. यूएस इज हाँ, लाइक फॉर पैसे कमाने के लिए, जर्मनी इज फॉर लिविंग, आई मीन यूरोप हाँ. इज फॉर लिविंग. सो Yeah. दैट आपको पहले से ही चूज करना पड़ेगा वेयर यू हाँ, वांटेड टू लैंड. exactly. Exactly. Yeah. ठीक है. सो हाउ ये हाउ द वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? कितने for दिन, कितने me, वीक में कितने दिन काम होता है यूरोप में? For me, it's really, really nice because like I enjoy it really, my work-life balance. कि यहाँ पे for my contract is 35 hours per week. तो 7 घंटा दिन में, तो 7 hours there and again half an hours का break, तो 7.5 hours, almost 8 hours अगर आप दिन में बस काम करना है. And then for me it takes 20-25 minutes for work. So then in total 9 hours, like बस मैं 9 hours के लिए बाहर होता हूँ जॉब के लिए, and then rest of the time I can spend it at home. Yeah, so and do whatever I like. I shoot some videos, something like this. So I utilize it a lot, and I do not have ओके. to stress. Okay, कि अभी मीटिंग है इस 5 बजे, आज ही ये काम होना ही चाहिए. तो इतना ये नहीं है जर्मनी में, ऐसा कि यू हैव टू डू इट नाउ. सो ये वाला सीन नहीं है जर्मनी में, और इन माय ऐसा फील्ड. हाँ ऐसा तो यूएस में भी नहीं है, बट कुछ जगह पे होता है, मतलब हाँ ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें होती रहती हैं. हाँ हाँ, बट व्हाट आई डू कि जैसे मेरा 7.5 hours का कॉन्ट्रैक्ट है पर यस पर डे, सपोज 37-35 hours का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली. तो मैं ना थोड़ा मंडे टू थर्सडे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा थोड़ा सा कंपनी में, क्योंकि इट्स ओके उतना रुक के. देन अगेन फ्राइडे को मोस्टली लोग यहाँ पे ऐसे ही करते कि दे जस्ट फिनिश देयर वर्क एट 12 or 1 मैक्सिमम. एंड देन अगेन यू हैव फ्राइडे का भी पूरा दिन होता है आपके पास, सैटरडे तो होता ही है, संडे भी बस. तो देन ओके. हियर मोस्टली दे वर्क फॉर 4.5 days ऐसा करके. सो फ्राइडे ओके. को 12-1 बजे तक काम खत्म करके बस फिर घर. ओके, मतलब वो ये है या कि उसको चार मतलब 7 दिन है, 2 दिन की फिक्स छुट्टी है, अब 5 दिन हाँ बचे, 5 दिन में से भी वो थोड़ा काम हम डेली डेली कर लेंगे, तो हाँ, 2.5 दिन एग्जैक्टली. हमारे पास बचेगा ज्यादा टाइम. तो हाँ, फिर क्या करते एग्जैक्टली. हो जर्मनी में? फैमिली है आपकी जर्मनी में? हाँ, लाइक मेरी वाइफ है यहाँ पे, हम दोनों यहाँ पे. ओ, सो मैरिड हो आप? हाँ हाँ, ओके. मैरिड. सो she's again, like, she did her masters in information technology, and then she was working for Mercedes, and again she got laid off. I'm telling you the scenario. It's not the Instagram version. So yeah, so such things are going on. And yeah, so because her company, they told her that she needs to learn German very well, and she's getting rejections just because of the German language, because she knows those programming kind of things and IT things. Yeah, I have zero knowledge, to be honest.
for these things. And yeah, so she's learning German. Yeah, so she's completely focusing on German to learn German language, and yeah, so it's like that. So we So both of currently she us, don't have any job. no, Okay, so this is why it yeah, is very important कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो, you should learn German. You yeah, should learn. yeah, And exactly. actually, But actually, it is same for me also. I'm living in Malaysia. mhm. I'm not working. This is then it is okay. But if I wanted to work, for me it will be hard to find a Mhm. job because I don't know their native language. Yeah, okay, okay. Yeah, again, it's good to know that Malaysia, the people there, they are also looking for someone who can speak Malaysian language. Okay, it's really nice. Everywhere you go, Yeah, कहीं पे भी आप जाओ, हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस को छोड़ के वहां की हम्म, लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, उसके हाँ, बाद ही काम कर सकते हो। इवन जैसे आपने बोला आपकी वाइफ आईटी प्रोग्रामर है, बट हाँ, टेक्निकली अगर आप देखो तो अगर उनको किसी एंड पे उनको कुछ डील नहीं करना अनटिल अनलेस शी इज नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद द क्लाइंट, सो exactly. उनको लोकल लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कुछ मतलब होना नहीं चाहिए बिकॉज आईटी हाँ, प्रोग्राम इज समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल दे हाँ. आर डिमांडिंग, सो Mhm. विच Again, मीन्स I आपको can give चाहिए you, सीखनी पड़ेगी। yeah, I can give you a pro tip for someone who is watching this podcast or this video. So, अगर जिन्हें लगता है कि हाँ लिंक्डइन पे जॉब दिख रही है, सिंपली अप्लाई करके जॉब मिल जाएगी, तो इतना भी आसान नहीं है. Because like most of the time, my wife, so when she applies, so that the complete job description, everything, it's in English. Everything is in English. And उसमें जैसा requirements में होता है ना कि like you should have, let's say, for couple of years of experience, okay, and then you should be good with this programming language, let's say for Python or any other language. It's again, it's okay. They do not even mention that you should speak German, so it's not written there. So my wife, she said, because she do not speak German, so she applies for that job, and then the recruiter call her, and she starts talking in German. So my wife says that she cannot speak German. So then they said, okay, this position is for someone who speaks German, but it's not mentioned there. So again, so it's like a trap, not a trap, but people, they blindly apply for that job thinking that again it's in English, but when the interviewer calls you, they says they want someone who can speak German. So again, it's not that easy to get a job even in IT now without German. No, IT is very tough. That's why initially I told that के Hmm, यूएस कनाडा तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि आईटी इज मेजर पोर्शन देयर, बट yeah, जर्मनी, इसीलिए जर्मनी में मैकेनिकल पार्ट्स है, तो मैकेनिकल हाँ, पार्ट्स में अंटिल अनलेस यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग रोबोटिक्स कि आप hmm, रोबोट से ही सारी फैक्ट्रियां चलवा ले रहे हो, सारा कुछ कर ले रहे हो, देन यू प्रॉब्ली नीड मोर पीपल। yeah, सो exactly. जर्मनी में इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था, बट है वहां हाँ, पे भी। है। हाँ, एग्ज़ैक्टली है। बट देन अगेन जैसा अभी इंडिया में भी जो स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जर्मनी में भी। बट देन अगेन उसके लिए फिर देन अगेन यू शुड हैव दैट माइंडसेट ऑफ स्टार्टअप वाला माइंडसेट होना चाहिए आपके पास में कि हाँ, दैट यू कैन डू समथिंग इन दैट स्टार्टअप। बट अगेन अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, तो देन अगेन इट्स रियली नाइस। तो पीआर के लिए आपने अप्लाई कर दिया? आई ऑलरेडी हैव अ पीआर। यू ऑलरेडी है पीआर? या ओके, कैसे, थोड़ा प्रोसेस बताएंगे कैसे होता है जर्मनी में? हाँ, इसमें भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मोस्टली मुझे मतलब जो भी मेरे सीनियर्स थे या फिर जो फ्रेंड्स थे, तो मुझे उनके थ्रू पता चला कि दैट यू कैन नॉट गेट योर परमानेंट रेसिडेंस व्हेन यू आर इन अ प्रोबेशन। सो अगर आप आपके जॉब में अगर प्रोबेशन में हो, तो देन यू कैन नॉट गेट दैट। बट जब मैं लास्ट जो जॉब था मेरा, तो आई रिसेंटली स्टार्टेड दैट, एंड मेरे पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था मेरा प्रोबेशन का। तो देन आई जस्ट सिंपली आस्क्ड दैट ऑफिसर कि इफ आई can apply for this PR. So he said, yeah, you fulfill all the criteria. You just simply, they gave me a form because I was in a probation. So then they gave me a form, told me to fill this out, and partially my company has to fill that. So मैंने मेरी साइड से पूरा फिल कर दिया, मेरे जितना इन्फॉर्मेशन थी, एंड देन हाफ पोर्शन कंपनी ने साइन वगैरह फिल करके ही किया, एंड देन आई गॉट माय परमानेंट रेसिडेंस व्हेन आई वाज इन अ प्रोबेशन. So again, it's you can get your PR when you are in a probation, but for that there are again some different criterias that you should speak not fluent, but still okay German. You should speak German, and then या सो जर्मन आनी चाहिए आपने कुछ जर्मनी में कुछ व्हेन यू वर्क सो यू पे सम टैक्सेस, सो आपने फॉर सर्टेन 21 मंथ्स और या फॉर 21 मंथ्स यू शुड पे टैक्सेस. सो वो भी अगर एक आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो देन आपको मिल जाती है
परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे, तो Okay. बस वो सब कुछ मैं फुलफिल तो कर ही रहा था, तो या आई गॉट परमानेंट रेसिडेंट। इट वाज Okay. So इन you should have 2024। high या paying job. You should have high paying job ताकि टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो एंड जर्मनी सॉरी नॉट अ जर्मन हाई, लैंग्वेज। या नॉट अ हाई पेइंग जॉब, बट यू शुड पे टैक्सेस। सो अगर आप टैक्स, इवन इट डजंट मैटर कि आपकी सैलरी कितनी है, बट इफ यू आर ओके। पेइंग टैक्सेस देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। या इवन इफ आपकी जॉब बेसिक मिनिमम वेज के आसपास है फिर भी, राइट? हाँ हाँ, बट ओके। जैसा फॉर अस, लाइक इफ वी आर अ फॉरेनर हियर एंड we did our masters, so the again there is criteria that we should do work in the same field what we have studied or what we have did in our masters। so वो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर लेट्स से इफ सम लाइक मैंने जैसा मेरा मेटलर्जी में किया है, तो अगर मैं कोई दूसरी कंपनी में अगर कोई एक रैंडम जॉब करता हूँ, तो देन अगेन इट्स नॉट, आई विल नॉट गेट पीआर, बट आई शुड वर्क इन द सेम फील्ड टू गेट माई पीआर। सो वो एक क्राइटेरिया भी होता है, अगर आप आपकी सेम फील्ड में करते हो तो देन यू कैन गेट अ पीआर। सो गॉट इट। पीआर मिलने में कितना टाइम लगा? पीआर मिलने में तो मेरा ऐसा था कि मुझे तो मेरे मास्टर्स के पहले ही मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई थी, तो मैं वो कर रहा था, तो वो भी क्योंकि दैट टाइम अगेन आई वाज पेइंग दोस टैक्सेस। तो वो था, तो इन 21 मंथ्स, या सो आई ऑलरेडी फुलफिल बिकॉज दे वांट समवन हु पेड टैक्सेस फॉर 21 मंथ्स। तो 21 मंथ्स मेरे तो हो गए थे, तो लेट्स 21 मंथ्स कितना होता है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स लेट्स से। सो अराउंड 2 साल में मिल जाता है आपको, अप्रोक्सीमेट ओके। 2 साल में, क्योंकि और अगेन इट डिपेंड्स कि आपको जो यहाँ पे ऑफिसेस होते हैं, तो वो भी उन पे भी डिपेंड करता है कि सम ऑफिसेस दे टेक्स अराउंड 3 4 मंथ्स 6 मंथ्स टू प्रोसेस दिस थिंग्स, बट मेरा तो ऐसा था कि आई गॉट इट विद इन अ मंथ। या और मेरा एक फ्रेंड है, तो जिसने अभी रिसेंटली उसे मिला है, तो ही अप्लाइड इन सितंबर आई गेस, अक्टूबर, एंड ही गॉट इन जनवरी। अगेन इट टुक 2 or 3 months। क्वाइट फास्ट। एंड फिर उसके बाद सिटीजनशिप का क्या प्रोसीजर होता है? दे आस्क मी अगेन, वो डिपेंड करता है कि जैसा अगर आप जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो देन दे आस्क यू कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। उन्होंने भी मुझे ऐसा पूछा कि बिकॉज यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया। हाँ, सिटीजनशिप के लिए ऐसा होता है कि शायद आपको जर्मनी में 5 साल रहना है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। मेरा तो ऐसे हो गया था, तो मैं बोला कि आई डिडंट वांट टू लूज माय इंडियन नेशनलिटी, सो मैं बोला कि आई एम ओके विद ओनली विद ऐसा दिस क्यों? परमानेंट रेसिडेंसी। पता नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी टाइप वाला थोड़ा था। तो फॉर दैट रीजन आई डिडंट टेक द जर्मन नेशनलिटी। अगर हाँ, इंडिया अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है इन फ्यूचर, तो शायद ले लूं, बट अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, बिकॉज जर्मनी अलाउज डुअल सिटीजनशिप बट इंडिया नहीं अलाउ करती, तो फॉर दैट रीजन मुझे But okay, इतनी but there are ways. There are some people, and there are ways people hold both passports. Some people. नो, मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं कि ऐसा होता है, बिकॉज जितना मुझे पता है कि इंडिया तो नहीं अलाउ करते, तो देन आई नीड टू सबमिट माय इंडियन पासपोर्ट टू Yeah, द legally you एम्बेसी। need to submit. If let's या say you are getting some other passport, आपको legally submit करना है. But there are some people who don't submit. That's what I'm talking ओके, about. तो ये तो नहीं पता मुझे, इस चीज के बारे में नहीं पता, ये लूप होल नहीं पता मुझे, बट अगेन स्टिल आई डू नॉट वांट टू टेक द जर्मन सिटीजनशिप Risk. नाउ। Okay. So, how you manage your finances? Not in Germany, in India. You have NRE, NRO accounts. या आई डू हैव। Okay. Okay. And do you invest in stock and those kind of stuff या आई डू in इन्वेस्ट Germany or in India? इन जर्मनी। Oh, देयर not आर in India. no, then yeah, Why? again then there is the one ETF through which I invest in Indian companies, the top 50 companies. Yeah, so just like same like the Nifty 50 what we have in India, so there is again some similar ETF here. So through that I invest in some Indian companies through an Okay. ETF, So but not आपने directly in, yeah, आपने डायरेक्टली इंडियन मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया है, नहीं, जर्मन मार्केट के थ्रू, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया, करेक्ट? हाँ, व्हाई सो? जर्मनी। वैसे मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस इजी लगा कि हाँ, और थोड़ा स्टेबल भी लगता है यहाँ पे। ये सब कुछ चीज, हाँ, मार्केट तो वोलाटाइल है ही, इरिस्पेक्टिव जर्मनी हो, इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी हो, बट स्टिल ऐसा मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का इतना कुछ नॉलेज नहीं था इन द बिगिनिंग कि
किस तरह से फंक्शन करता है, सब कुछ चीज़ें बस थोड़ा-सा यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख के सीखा एंड देन आई थॉट ओके स्टार्टिंग में मैं भी जब सब नॉर्मल लोगों की तरह कि हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये ईटीएफ चाहिए, ये स्टॉक चाहिए, ये म्यूचुअल फंड मतलब सब कुछ चाहिए था ऐसा। ये अच्छा लग रहा है, इसका लास्ट मंथ का देखा कि हाँ 16% रिटर्न है तो हाँ, इन्वेस्ट कर लो, इसमें कर लो। बट देन आई स्टॉप्ड इट। मैं सोचा कि नहीं इतना तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ये हो रहा है मेरे में मतलब बट ये हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, देन आई रिड्यूस्ड माय portfolio from like let's say 20-30 ETFs to now I have only 4 ETFs. So and yeah, the crypto also bit. Oh, you in Germany you can trade in crypto. I mean, जर्मनी में क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं. हाँ, इन्वेस्ट कर सकते हो आप थ्रू दोस Okay. एप्स। आई गेस अब मुझे जितना पता है इंडिया में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एप्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट करेंसी। लेट्स से फॉर क्रिप्टो देयर इज सम डिफरेंट ऐप फॉर ईटीएफ्स और फॉर म्यूचुअल फंड देयर आर सम डिफरेंट एप्स एंड देन अगेन फॉर ईटीएफ्स आल्सो बिकॉज़ अगेन मुझे जितना पता है मैं वीडियोस जो देखता हूँ तो उसमें ऐसा है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स थ्रू इंडियन ब्रोकर्स और समथिंग लाइक दिस कि ऐसा कुछ था किस में इंडियन इंडिया में मतलब इंडिया की जो कुछ ब्रोकर एप्स है उसमें आप डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया में जैसे म्यूचुअल फंड चलता है आई गेस तो No, उसमें no, ऐसा था ETF, कि ETFs are there. ETFs हाँ are there. ओके You can ओके directly buy. ओके हाँ But ओके as ओके a देन इट्स NRI, my question, मैंने क्वेश्चन ही इसीलिए पूछा था, कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए. एज ए एनआरआई, आप नॉर्मल डीमैट अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते. नॉर्मल जो ब्रोकर ओके अकाउंट है, वो आप नहीं होल्ड कर सकते. हाँ There ओके is a PMS kind of thing, पोर्टफोलियो हाँ ओके मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके दोज आपको ओके लेनी पड़ती है. सो दैट्स व्हाई मेरा हाँ ओके वो क्वेश्चन पूछने का तरीका ही इसीलिए, मतलब वो एम ओके ही, एजेंडा वो था कि ओके मैं कॉम्प्लेक्सिटी पता करूं कि हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हाँ क्योंकि बस इट ये इज था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हाँ कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा इजी लगा एंड देन अगेन इट्स रियली इट इज एक्चुअली इजी. या मैं भी इट इज मैं भी एक्चुअली यूएस ब्रोकर के थ्रू एक्सप्लोर कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, हाँ तो ओके ओके एक्चुअली ओके फिर मुझे समझ में आता है कि इंडिया में आई एम एक्टिव इन्वेस्टर फ्रॉम लास्ट 6-7 years. आई थिंक आई हैव बीन इन्वेस्टिंग. सो मुझे धीमे धीमे जब बाकी ऑप्शन आप चूज वो थोड़े देखते हो ना, समझते हो, तब समझ में आता है कि हाँ, इंडिया में थोड़ा है, कॉम्प्लेक्स है चीजें हाँ हैं. हाँ तो इसी फॉर दैट रीजन कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है जर्मन ब्रोकर से ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड देन अगेन स्टिल आई एम इन्वेस्टिंग इन सम इंडियन कंपनीज so I have covered all those like Indian companies, German and US again. So portfolio is good, I would say. So, Yeah. yeah, okay. Okay. Anything? Okay. What about racism? Okay. Uh, just wait a moment. I'm Take your out time. of my battery. Just a moment. Yeah. No problem. You take your time. Just a moment. Yeah. Yeah. Can you hear me, Rajat? Yeah, yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Yeah. So let's start it again. I'm sorry. Okay, no problem. तो जर्मनी में रेसिज्म का कोई सीन है? रेसिज्म होता है? पर्सनली मुझे इन 7 सालों में मुझे तो आज तक कभी फील नहीं हुआ और मतलब कभी किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं कि या यू आर फ्रॉम लाइक ब्राउन स्किन तुम वापस चले जाओ या फिर ऐसा कुछ मतलब मैंने तो कभी रेसिज्म फेस नहीं किया बट देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन कि उसने हाँ ये सब कुछ चीजें एक शायद 2 बार ऐसा उसके साथ में हुआ है बट से- पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ बट और अगेन लाइक आई नो यहाँ पे कितना 30-40 लाइक लोगों को 30-40 लोगों को जानता हूँ यहाँ पे जो मतलब मेरे फ्रेंड्स है या फिर उनके कोई फ्रेंड्स है तो ऐसा आई डू नॉट नो मैक्सिमम मोर देन 100 पीपल हियर तो अभी तक उनमें से मतलब जितना मुझे पता है कि बस 2-3 लोगों के साथ में ऐसा हुआ है बट still it's not that frequent or again it depends in some regions I would say you can feel that or you can see that बट इतना तो रेसिज्म तो है नहीं यहाँ पे किस फॉर्म का हाँ रेसिज्म होता है? क्या हल्का फुल्का हीट मूवमेंट होता है या एक्सट्रीम भी चला जाता है? नहीं नहीं एक्सट्रीम तो नहीं होता है ऐसा कुछ कि आपको बहुत ज्यादा ही कुछ एक्सट्रीम में कुछ बोल दिया या फिर कुछ ये कर दिया बट देन अगेन सम पीपल मतलब मुझे जो इंसिडेंट्स मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जैसा वो था तो बस स्टॉप पे खड़ा था तो उस मतलब बस का वेट कर रहा था और उसके साथ में कोई तो एक बूढ़ी औरत थी जर्मनी थी तो वो थोड़ा शाम का टाइम था ऐसा तो जैसा क्योंकि बस वो खड़ा था तो वो है ना उसके थोड़ा बाजू में मतलब वो पहले खड़ी थी और मेरा फ्रेंड बाद में आके वहां पे खड़ा हुआ तो वो थोड़ा सा ऐसा दूर दूर सर मतलब दूर जाने लगी उससे तो पता नहीं उसे क्या हुआ ऐसा तो देन उसे लगा कि चलो ठीक है फॉर सम रीजन वो कहीं दूर मतलब थोड़ा वहां चली गई होगी फिर बहुत सारे में टाइम था तो वो खुद ही आके फिर उसे बोलने लगी कि तुम कौन से कंट्री से हो तो फिर उसने बताया कि ऐसा वैसा है तो फिर उसने बोली कि तुम वापस क्यों नहीं जाते तुम्हारी कंट्री में तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो हमारी
मतलब कंट्री थोड़ा मतलब मेंटेन नहीं कर रहे हो क्लीनलीनेस वगैरह ये सब कुछ चीजें ऐसा। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऐसा तो नहीं है, तो तुम बस मुझे बोल रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं या फिर इंडियंस ही गंदा कचरा फैला रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि कचरा फैला रहे हैं, बट ये तो चलो ठीक है। तो ये सब उसके साथ में ये एक इंसिडेंस हुआ था, बट उसके बाद में ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का तो जैसा किसी ने फिर थोड़ा स्टेयर कर लेते दो मतलब 5-10 सेकंड के लिए, तो थोड़ा ये होता है। बस बाकी तो ऐसा कुछ मतलब पर्सनली मुझे तो अभी कैसा आज तक कभी ऐसा रेसिज्म फील नहीं हुआ। ओके। सो इस या ये कूड़े कूड़े से रिलेटेड बात याद आई कि मैंने अभी मैंने कुछ दिन 2 वीक पहले एक पॉडकास्ट करा था। एक पर्सन थे, ही इज फ्रॉम फ्रांस। सो हम्म। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे रहते हैं वो। सो ये ही टोल्ड मी ओके। मोर मोर थिंग्स अबाउट दिस के इंडियन तो नहीं बट यूरोप के जो बाकी रीजन के बंदे हैं वो ज्यादा हम्म। कचरा फैलाते हैं। हाँ हाँ लाइक दे हैव एग्जैक्टली। नियर टू स्ट्रीट दे डू, आई मीन poop, I mean those kind of या stuff. या अगेन even I belong to the same region, maybe was Germany and France की border, it's like only 2 kilometers from my place जहाँ पे भी मैं रहता हूँ। Okay, okay. Yeah, so it's really really close। तो हाँ, ये तो चीजें है कि बाहर की कंट्री से आई वुड नॉट से कंट्री का नाम तो नहीं, बट जैसा एशिया रीजन से तो नहीं, बट जो यूरोपियन कंट्रीज है डिफरेंट यहाँ की, तो वहां से जो लोग आते हैं तो अगेन यू कैन सी दैट, एंड सेम चीज हो सकता है कि दे दोज पीपल आर अगेन ऑब्जर्विंग सम पीपल फ्रॉम एशिया, लेट्स से फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान और सम अदर कंट्रीज, दे आर डूइंग some they are littering the streets or on they are littering the streets in Germany, and then same thing people from Asia like us, they are observing some European people, they are again spreading like doing such things. So again it's like um, you cannot tell okay only Indians or some Asian peoples they are spreading the they are doing the they are littering the streets here, so it's not Okay. 100%, so you cannot simply claim those things। पर्सनली डू यू एग्री कि इंडियंस चाहते हैं गंदगी फैलाते हैं ऐसी कंट्रीज में? uh, नहीं, इससे पार्शियली एग्री करूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों को है ना कि इंडिया में वो आदत ही बन चुकी है कि हमें शोर शराबे की आदत बन चुकी है हमें। हमें जब तुम यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे तुम शांति में नहीं रह सकते। ओके, तो हमें सॉरी टू हम इंटरप्ट यू हियर। देयर आर टू पार्ट्स। मैं यहाँ पे गंदगी की बात कर रहा हूँ, हाँ नहीं, मैं शोर उसी पे शराबे आ की। रहा हूँ। हाँ ओके। उसी पे आ रहा हूँ मैं कि हम लोगों को ना वो आदत हो गई है कि जैसा हमें पता है कि हाँ कचरा अगर ठीक है डस्टबिन नहीं मिला है तो हमें कचरा वहीं फेंक देते हैं, इंडियंस को वो आदत है। तो वो ऐसा होता है ना कि जब तुम स्टार्टिंग में यहाँ आते हो तो तुम्हें वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, तुम कभी कभी हो सकता है कि भूल भी जाते हो कि अरे हाँ डस्टबिन नहीं मिल रहा है, तो तुम शायद कचरा वहीं फेंक देते हो यहाँ पे। और ये चीजें अगर तुम्हें कोई देख रहा है तो वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेगा, एंड देन दे नो दैट यू आर फ्रॉम ईदर लाइक एशिया एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, लेट्स से फॉर दिस थिंग। सो वो लोग ऐसा है ना कि उनके माइंड में ये इमेज बन चुकी है कि यार हाँ इंडियंस जो है या फिर कोई डिफरेंट एशियन कंट्री से, तो ये लोग कचरा फैलाते ही फैलाते हैं। तो बट प्रॉब्लम हम ऐसा है कि हम लोगों ने बस इंडिया में बस यही चीजें देखी है, रास्ते पे कचरा फेंको कहीं भी कुछ भी, मतलब सब चलता ही इंडिया में। तो मुझे लगता है कि रूल्स ऑप्शनल है, कि रूल्स इतने मैंडेटरी मैंडेटरी तो है बट लोग फॉलो नहीं करते उतना। तो बट ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो ये चीजें जब इंडियंस यहाँ पे आते हैं ना तो वो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों को अप्लाई करने में। तो थोड़ा टाइम के साथ में होता है। और अभी मुझे भी मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं आया तो कचरा ही फैलाना चालू किया, ऐसा तो नहीं है, बट स्टिल अगेन कि थोड़ी तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि इंडियंस यहाँ पे आके नोइंगली या फिर पर्पसफुली वो कचरा फैलाता है, ऐसा तो नहीं है। एंड व्हाट या अबाउट दैट लाउडनेस के म्यूजिक वगैरह, पार्टीज वगैरह? हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे ऐसा है कि जर्मनी में आप रात के आई गेस 10 बजे के बाद में, तो रात के 10 बजे के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, इवन आप वैक्यूम नहीं चला सकते, म्यूजिक तो बजा ही नहीं सकते आप। एंड इवन ऑन संडेज भी, संडेज को तो पूरा दिन आप संडेज को कुछ नहीं कर सकते, आप वैक्यूम नहीं कर सकते, इवन वॉशिंग मशीन भी नहीं चला सकते आप, और कोई ड्रिलिंग। क्योंकि हमारे इंडिया में तो वही होता है ना कि जब मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं, एंड देन जो वीक के जो पूरे पेंडिंग काम है वो हम सब सैटरडे या फिर संडे को करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब हमारी सोच ही वैसी है कि अरे हाँ ठीक है मंडे टू फ्राइडे जॉब हो नहीं, गया, हमारे एंड पे देन जो सिस्टम ही वैसा है। हाँ एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ पे ना वो सिस्टम नहीं है वैसा। यहाँ पे ऐसा है कि ठीक है जो तुम्हारी डेली जो लाइफ जो तुम्हें काम है तो वो तुम मंडे टू फ्राइडे कर लो, और जो बाकी सैटरडे संडे है तो तुम उस पर रेस्ट करो, इट्स फॉर यू। आप उसमें कुछ ऐसा काम मत करो, आपकी बॉडी को भी उतना पेन मत दो कि योर बॉडी इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन संडे ऑल्सो। सो ये चीज यहाँ पे मतलब ये उसका मोटिव है कि दैट एवरीवन शुड बी
quiet. They should not make they shouldn't be loud and should not disturb their neighbors. So ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. But हाँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी पर्सनली, क्योंकि इवन आई डू नॉट प्ले म्यूजिक आफ्टर 10th, सो ऐसे कंप्लेंट्स तो नहीं है ये मेरे, मतलब किसी नेबर ने मुझे कंप्लेंट तो नहीं किया कि तुम इतना लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हो या फिर सब कुछ चीजें. बट हाँ, लोगों के साथ में होता है ऐसा सब कुछ कि नेबर्स कंप्लेन एंड दे, वो ऐसा है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में भी अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे नेबर को मुझसे डिस्टर्ब हो रहा है तो देन दे विल फर्स्ट कम टू माय प्लेस, देन बेल बजाएंगे, बोलेंगे कि यार आपका म्यूजिक थोड़ा ज्यादा लाउड है, आप उसे कम कर दो. यहाँ पे वैसा नहीं है. मोस्टली यहाँ पे दे विल डायरेक्टली कॉल पुलिस कि हमारे नेबर्स ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं एंड इट्स 10, ऑलरेडी 10. तो फिर आपके घर पे पुलिस आएगी, पुलिस आपको एक वार्निंग देगी कि रात के 10 बज चुके हैं, आप म्यूजिक बंद कर दो. तो बस अगर आप स्टिल म्यूजिक प्ले करते हो तो विद इन यू विल गेट अ फाइन, ऐसा होता है. हाँ, तो ये लोग थोड़ा रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आई गेस. उसी की वजह से ना यहाँ पे सब चीजें नॉर्मली फ्लो कर रही है, मतलब सब वर्क कर रही है यहाँ पे. अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो एवरीथिंग फील्स रियली नाइस, इन ऑर्डर. इन ऑर्डर. एग्जैक्टली.